عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کی جائے گی۔ اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست دی جائے گی۔ حتمی فہرست کے 54 دن بعد جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ اب بے یقینی کا خاتمہ ہونا چاہیے، الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا رد عمل۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کارکن اپنے قائد کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ بولے فیصلے سے غیر یقینی کی کیفیت میں بہتری آئے گی۔ ANP کے زاہد خان کا انتخابات 90 روز میں کرانے کا مطالبہ، کہا الیکشن کی تاریخ کا بھی اعلان کیا جانا چاہیے تھا۔ MQM پاکستان کے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہماری بات پر توجہ دی گئی، سندھ کے الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تحریک انصاف کا جنوری میں الیکشن کرانے کا اعلامیہ عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ PTI کور کمیٹی کے رکن نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے، اس سے آگے جانا غیر آئینی ہے۔ الیکشن کمیشن جیسے کام کر رہا ہے یہ آئینی ادارہ نہیں لگتا۔ صدر مملکت کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہے۔ ان لوگوں کے لیے شاید یہ مایوس کن خبر ہے جو یہ افواہیں پھیلا رہے تھے کہ ہم لوگوں کا لمبے عرصے تک ٹکنے کا ارادہ ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ملک کے آئین کے تحت انتخابات ہوں گے اور ملک کے اندر مستقبل کے جتنے بھی اصلاحات اور معاشی ترقی ہے، سیاسی استحکام، اس میں اضافہ ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے۔ آئین میں لکھا ہے کہ ملک منتخب نمائندے چلائیں گے۔ نگراں حکومت کی طویل مدت ہونے کی خبریں دینے والوں کے لیے یہ مایوس کن خبر ہے۔ سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات کے خلاف نیب کیسز کھل گئے۔ اسلام آباد اور کراچی کی احتساب عدالتوں میں گاڑیوں میں بھر کر ریکارڈ پہنچا دیا گیا۔ 80 دن میں 26 ریفرنس کی جانچ پڑتال مکمل کر کے عدالتوں میں ریکارڈ پہنچا دیا گیا۔ کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر آصف حسین، MQM رہنما مصطفیٰ کمال، رؤوف صدیقی، سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کوچ کو موصول۔ ریکارڈ موصول ہونے پر اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کہا کہ ابھی تو 20 ریفرنس آئے ہیں، تقریباً 60 ریفرنس رہتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کو طلبی کا نوٹس بھی جاری۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اس کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ نیب کے کھلنے والے کیسز کی تحقیقات حساس اداروں کے اہلکار کریں گے۔ چیئرمین نیب نے اچھی تفتیش کے لیے حساس اداروں سے مدد مانگ لی۔ حساس اداروں کے انٹیلیجنس افسر اور اہلکار ڈیپوٹیشن پر نیب میں آئیں گے۔ نیب تفتیشی افسران کی مدد کریں گے، اپنے اصل ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ اسکیل پر ہی کام کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اگلے چند دنوں میں حساس اداروں کے افسر اور اہلکار اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز دوبارہ کھلنے کے بعد نئی تفتیش شروع کریں گے۔ ڈپٹی چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے عہدوں سمیت نیب کی تمام خالی اسامیوں پر فوری تقرریوں کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر لندن روانہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لاہور سے لندن روانہ ہوئیں۔ شہباز شریف منگل کی صبح لندن سے پاکستان پہنچے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی، جس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف کو پچ رپورٹ دینے لندن گئے ہیں۔ نواز شریف پچ رپورٹ دیکھ کر ہی کریز پر آنے کا فیصلہ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی فردوس عاشق اعوان کا تبصرہ، کہا نواز شریف ہوم گراؤنڈ پر بھی کنڈیشنز دیکھ کر کھیلنا چاہ رہے ہیں۔
सुनता जा शर्माता जा। चेयरमैन सेनेट के भाई को ग्रेड 22 के ऑफिसर के बराबर 27 साल के लिए इस्लामाबाद में बंगला अलॉट। मामला अदालत में पहुंच गया तो राज़िक संजरानी ने जवाब नहीं दिया। आज तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि राज़िक संजरानी को बतौर एमडी सिंडिकेट मेटल्स लिमिटेड बलोचिस्तान कैटेगरी 1 रिहाइश अलॉट की गई। राज़िक संजरानी वफाकी हुकूमत के मुलाजिम भी नहीं, इसके बावजूद वो कैसे कैटेगरी 1 रिहाइश के मुस्तहिक हैं। स्टेट ऑफिस हुक्काम बताने से कासिर रहे कि राज़िक संजरानी एक 33-34 उम्र साल का शख्स 22 ग्रेड का ऑफिसर कैसे हो सकता है। लगता है राज़िक संजरानी को चेयरमैन सेनेट का भाई होने की बिना पर कैटेगरी 1 रिहाइश अलॉट होने की रियायत मिली। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला के सरबराह और सदर की अदम मौजूदगी में सदर होते हैं। चेयरमैन सेनेट ने जाती मफादात को फराइज पर असरअंदाज न होने देने का हलफ लिया होता है। सोचा भी नहीं जा सकता कि चेयरमैन सेनेट ताकत के इस्तेमाल से भाई को सहूलत देंगे। ये गाड़ी गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स गुजारों की मिल्कियत है। गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी गाड़ियों पर ऑफिशियल लोगो लगाने की हिदायत। तमाम अजला की सरकारी गाड़ियों पर उर्दू और अंग्रेजी जुबान में वाज़ेह अंदाज में सरकारी गाड़ी की अवामी मिल्कियत का लोगो लगेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। शहरियों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान ने अच्छे काम का आगाज कर दिया। अमल दरामद पूरे पाकिस्तान तक फैलाना चाहिए। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील। मतरूका वक्फ इमलाक का सुबह सवेरे एफआईए और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि शेख रशीद और उनके भाई मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुताल्लिक कोई मुस्तरद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। लाल हवेली को खाली कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जारी किया। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफी का लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में सिर्फ एक हफ्ता रह गया। पाकिस्तान टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी अब तक फैसला न हो सका। जराये का दावा है कि कप्तान, चीफ सिलेक्टर और टीम मैनेजमेंट एक पेज पर नहीं। गुज़िश्ता रोज होने वाले अहम इजलास में चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक शरीक नहीं हुए। बाबर आजम और डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर ने इजलास में तस्लीम किया कि एशिया कप में शिकस्त नाकिस हिकमत अमली के सबब हुई। मुसलसल सफर की थकावट, फिटनेस मसाइल और श्रीलंका के मौसम का भी टीम की तैयारियों पर असर पड़ा। बाबर आजम और मिकी आर्थर टीम में ज्यादा तब्दीलियों के हामी नहीं। इजलास में बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल ने टीम के साथ स्पिन बॉलिंग कोच रखने का मशवरा दे दिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलना है। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के इल्जाम की गूंज अभी कम न हुई थी कि कनाडा में खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक एक और सिख को कत्ल कर दिया गया। सुखदिल सिंह नामी शख्स को कनाडा के इलाके विनिपेग में 15 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। सुखदिल सिंह 2017 में भारतीय पंजाब से कनाडा आया था। सुखदिल सिंह के कत्ल के फौरन बाद भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सर्विस भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इल्जाम के बाद भारत ने कनाडा के कुछ सिफारतकारों को धमकियां। दिल्ली में कनाडा के हाई कमीशन का कहना है कि सिफारतकारों को धमकियां दी जा रही हैं। भारत में अपने अमले की तादाद का जायजा ले रहे हैं। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इल्जाम के बाद से दोनों ममालिक में सिफारती कशीदगी बरकरार है। कनाडा में जो हुआ उन्होंने असैसिनेशन, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया का जो एक एजेंडा है वो ग्लोबल हो गया है। ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स का एक जो उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ था वो उतर गया, डेमोक्रेसी का वो उतर गया है और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को कत्ल करने का भारतीय एजेंडा ग्लोबल हो गया। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल से भारत एक्सपोज हो गया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की अमरीका में जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा शाइनिंग इंडिया और जमहूरियत के भारतीय
दावे बेनकाब हो गए। पहले सब समझते थे कि भारत सिर्फ पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर किलिंग में मुलव्विस है, अब बात आगे बढ़ गई है। पाकिस्तान में गरीबों को रिलीफ, दौलतमंदों पर टैक्स लगाया जाए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की न्यूयॉर्क में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा कि सरबराह IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। वजीर आजम की बिल गेट्स से भी मुलाकात, बिल गेट्स का पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का आज़म। PIA को जून से संगीन मसाइल का सामना है। जो काम जून से नहीं हो सका वो निगरान हुकूमत ने 48 घंटों में कर लिया। फ्यूल मिलना शुरू हो गया, परवाजें मामूल पर आ गई। निगरान वजीर निचकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निचकारी निगरान हुकूमत का एजेंडा नहीं, निगरान हुकूमत पहले से जारी निचकारी के मैंडेट को आगे लेकर चल रही है। निगरान हुकूमत जो काम कर रही है उसका इख्तियार मुंतखब हुकूमत देकर गई है। निजकारी कमीशन ने PIA की निजकारी का अमल शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक निजकारी से कबल तंजीम नौ की गरज से PIA को 2 कंपनीज में तकसीम करने के इकदाम किए जा रहे हैं। PIA की बैलेंस शीट की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए माली मुशीर की खिदमत तलब कर ली गयी। माली मुशीर PIA की माली तंजीम नौ के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर तजावीज देगा। इन तजावीज में PIA की 2 कंपनीज में तकसीम या एक होल्डिंग कंपनी के मातहत इदारा बनाने की तजवीज शामिल है। PIA के असासों की मालियत 147 अरब रुपए है, जबकि इदारे पर चढ़ा हुआ कर्ज 742 अरब रुपए है। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हुकूमती इदारे खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे। सरकारी कंपनी इसके नुकसानात की बुनियादी वजह मैरिज के बगैर तैनातियां हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की तंजीम नौ की जा रही है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस का हुकूमती कंपनी के कानून का मुसव्वदा बना लिया है। नए कानून के तहत बोर्ड्स को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जाएगा। बोर्ड्स में माहिरीन को रखा जाएगा और चेयरमैन भी मेरिट पर लगाया जाएगा। इन कंपनीज को पेपरा कानून से इस्तिस्ना दिया जाएगा। गैर शरई निकाह के केस में चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया। सिविल जज कुदरतुल्लाह के दस्तखतों से जारी नोटिस में चेयरमैन PTI को 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म, जज की अमले को अटक जेल के सुपरिटेंडेंट के नाम रोबका जारी करने की हिदायत। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जेर समाअत है। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 अरब रुपए वसूल कर लिए। आखिरी 7 दिन में 5 अरब रुपए वसूल किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा, कहा 1500 बिजली चोर गिरफ्तार है। बिजली चोरी कल्चर खत्म किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। जुर्म करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को देने की इजाजत नहीं दे सकते। जो मेरा डेट डिफॉल्टर है, हम ये लिख रहे हैं नादरा को और इमिग्रेशन को कि उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करें, उसका पासपोर्ट कैंसिल करें, वो फर्द ना इशू करवा सके किसी जगह से DC ऑफिस से, वो कोई प्रॉपर्टी ना ले सके, वो लोन ना ले सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसका डिसीजन कर लिया है कि आप लोग इसका डेटा हमें दें, हम उसकी हर चीज जो है ना वो सीज कर दें। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में जो मुजाहमत या फायरिंग करेगा उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। चेयरमैन फेस्को का ऐलान, बिजली चोरों से निपटने के लिए बड़े बड़े फैसले। नादहिंदगान को ब्लैकलिस्ट कराया जाएगा, उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मंसूख कराए जाएंगे। फेस्को चीफ का कहना है कि फेस्को रीजन में 472 हाउसिंग कॉलोनीज गैर कानूनी बिजली कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं। सरकारी इदारे भी कम नहीं। फैसलाबाद रीजन में 50 से ज्यादा सरकारी इदारों ने 1 अरब 52 करोड़ से ज्यादा के बिजली के बिल नहीं दिए। उनमें वासा सबसे आगे है, जिसने 1 अरब 39 करोड़ के वाजिबात अदा करने हैं। पंजाब पुलिस ने 2 करोड़ के बिल देने हैं। रेलवे, जिले हुकूमत, FIA, महकमा तालीम, महकमा सेहत और महकमा जेल खाना जात भी फेस्को के नादहिंदा हैं। खाना जो सूबेदार साहब वो धमकी ॾेई वियो आहे। जेके फातिमा जे केस में मूंसां गवाह आहिनि, गॾु शायदि उन्हनि खे थो चए त
तव्हांजा गोॾा कढंदुमि, तव्हांखे गोलियूं हणंदुमि, उन बदिली थी वञे, असांखे उहो नथो खपे सूबेदार साहब। इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। आईजी साहब ने और डीआईजी यहाँ मौजूद हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे को चेंज भी कर देंगे। वो ऐसे चलेंगे जो बिल्कुल जो ताल्लुक नहीं होगा, इस एरिया का नहीं होगा, कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो इन चीजों मेरे ख्याल में हम इंश्योर करेंगे बहुत जल्दी। SHO धमकी दे रहा है कि फातिमा कत्ल केस की पैरवी न छोड़ी तो घुटनों पर गोलियां मारेगा। फातिमा की मां की दुहाई। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से SHO को तब्दील करने का मुतालबा। निगरान वजीर दाखिला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत मुल्जिमान को नहीं छोड़ेगी। पुलिस हुक्काम ने भी कहा फातिमा के अहले खाना को इंसाफ मिलेगा। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने मरकजी मुल्जिम असद शाह के रूपोश ससुर फैयाज शाह की 7 दिन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असद शाह की मफरूर बीवी हिना शाह की जमानत की दरखास्त पर फैसला 26 सितंबर तक महफूज। हिना शाह पर इल्जाम है कि उसने उससे पहले 7 दिन की जमानत ली, फिर मफरूर हो गई। फातिमा की असद शाह की हवेली में मुबैना तशद्दुद से 14 अगस्त को हलाक हुई थी। तड़प तड़प कर मरने वालों की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने असद शाह और कंपाउंडर को गिरफ्तार किया था। रानीपुर के तफ्तीशी ऑफिसर पर अहले खाना ने मुल्जिमान को सहूलत देने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद तफ्तीश CTD सक्खर को मुंतकिल कर दी गई। पंजाब में डेंगू के केसेस में मजीद इजाफा। 24 घंटों में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद रवां साल 3000 से बढ़ गई। 24 घंटों में लाहौर से 36, रावलपिंडी से 32 और मुल्तान से 17 केसेस रिपोर्ट हुए। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 111 मरीज जेरे इलाज हैं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की पाकिस्तान में चीनियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। चीनी हम मनसब से मुलाकात में कहा पाकिस्तान चीन से बाहमी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। चीनी वजीर बराए पब्लिक सिक्योरिटी ने दहशतगर्दी मनशियात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा और चीनी शहरियों और तनसीबात की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका ताउन से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना सकते हैं। इसराइली सफीर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से बाहर निकाल दिया गया। इसराइली सफीर ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की तकरीर में रुकावट डालने की कोशिश की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी टीम ने बरवक्त एक्शन लिया, सफीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अगर ईरान ने एटमी हथियारों के उसूल में पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद का ऐलान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में दो तरफा रवाबित के फरोग में संजीदा हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि दोनों ममालिक की सिक्योरिटी सर्विसेज के बाहमी ताउन से हमले रोके गए और जानें बचाई गईं। कराची में गटरों पर ढक्कन इसलिए नहीं कि मनशियात के आदी अफराद गटर के ढक्कनों, पुलों और इमारतों के सरिये निकाल कर बेच देते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर को ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला का कराची में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। लोकल बॉडीज इजलास में पुलिस को इस ऑपरेशन के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को साथ मिलाने की हिदायत। निगरान वजीर आला ने मेयर कराची को लोकल बॉडीज के घोस्ट मुलाजमीन को फारिग करने की हिदायत की। कहा वो लोकल काउंसलर को मजबूत करना चाहते हैं। कराची के इलाके सफूरा में गटर उबल पड़े। कई हफ्तों से खुले गटर और बदबूदार पानी ने रिहायशियों का जीना मुहाल कर दिया। गटर उबलने से गंदा पानी सड़कों तक आ गया। लोगों का चलना फिरना, रास्ते से गुजरना मुश्किल हो गया। मकीनों का कहना है कि कोई सुनने वाला नहीं। कहा जाएं, किससे शिकायत करें, जिसे मसला बताओ वो कहता है हमारा काम नहीं।
کوئٹہ کا حال دیکھا ہے, صفائی کہاں ہے, تماشا بنایا ہوا ہے شہر کا. بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس کامران ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن عبدالجبار پر برہم. کہا آپ کو ایڈمنسٹریٹر لگایا کس نے ہے. لوکل بسز کے روٹس, پارکنگ اور ٹریفک مسائل کے کیس میں کہا عدالت نے نقشوں پر پابندی لگائی تھی, آپ نے مذاق بنا لیا, نقشے جاری کرتے جا رہے ہیں. کون جواب دہ ہے اس کا. یہاں سب کی لاٹری نکلی ہوئی ہے, کوئی کام نہیں کر رہا. کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا لینڈ مافیا والے طاقتور ہیں, ان کے خلاف کارروائی ممکن نہیں. رہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوں جیتے گی پیپلز پارٹی. پروپیگنڈا کتنا بھی ہو سرپرائز دے گی پیپلز پارٹی. کراچی پریس کلب میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نظریات اور طرز سیاست مختلف ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ پیر پگارا سے اتحاد نہیں ہو سکتا. انتخابی اتحاد کس سے کرنا ہے یہ الیکشن کے وقت طے کریں گے. سکھر کی بیراج کالونی میں آوارہ کتوں سے بچنے کی کوشش میں 9 سالہ بچی کھلے گٹر میں گر گئی. واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. بچی دودھ لینے گھر سے نکلی تھی, اہل محلہ نے بچی کو گٹر سے نکال کر بچایا. خیبر پختونخوا میں میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ میں امیدواروں کو پاس کرانے کے 20 سے 35 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں. 190 نمبرز کا ریٹ 35 لاکھ روپے لگایا گیا تھا. انٹری ٹیسٹ میں نقل کرانے کے والوں کا کچا چٹھا سامنے آ گیا. ایم ڈی کیٹ اسکینڈل کے مبینہ مرکزی ملزم کی تفصیلات ایٹا نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو دے دی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملزم ظفر محمود اور اس کا بھائی نقل کروانے کے بلوٹوتھ ڈیوائس نیٹ ورک کے سرغنہ ہیں. نیٹ ورک نے گزشتہ سال بھی ایم ڈی کیٹ اور دیگر امتحانات میں امیدواروں کو پاس کروایا. پچھلے سال امتحانات میں بھی اسی طرح کی ڈیوائس استعمال کی گئی تھی. دوسرا جی بی کیریئر فیسٹ 2023 کل سے اسکردو میں شروع ہوگا. فیسٹیول میں 20,000 سے زائد طلبہ شرکت کریں گے. 50 سے زائد ماہرین طالب علموں کو بہتر مستقبل کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ پر لیکچرز دیں گے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور دیگر رہنماؤں نے الیکشن کمیشن پر سندھ میں جاری منصوبوں کے فنڈز روکنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ فنڈز رکنے سے سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیراتی کام رک گیا. جیو فیکٹ چیک کی تحقیق میں یہ دعویٰ گمراہ کن ثابت ہوا. الیکشن کمیشن کے مطابق ایسی کوئی ہدایات نہیں دی. 15 اگست کے خط کے بارے میں غلط فہمی تھی جو دور ہو گئی. خط میں جاری منصوبے نہ روکنے کے بارے میں واضح لکھا تھا. جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا مؤثر پلیٹ فارم ہے. کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. فیک نیوز سے چھٹکارا پا کر جیو. محکمہ موسمیات کی 22 سے 24 ستمبر تک بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی. راولپنڈی, لاہور, کشمیر, گلگت, مری, گلیات, اسلام آباد, لکی مروت, بنو, کرک, وزیرستان میں بارش کا امکان. مری, گلیات, کشمیر, ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. آج سندھ کی ساحلی پٹی پر بونداباندی اور ہلکی بارش کا امکان. کراچی میں آج کہیں کہیں بونداباندی اور ہلکی بارش کی پیش گوئی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو سالگرہ مبارک. لاہور میں چیئرمین پیپلز پارٹی کی سالگرہ کے موقع پر تقریب, کیک کاٹا گیا. آتش بازی کا بھی مظاہرہ. پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے بلاول بھٹو کی بطور وزیر خارجہ کامیابیوں سے متعلق ویڈیو بھی جاری. بینک آف انگلینڈ کا شرح سود 5.25% پر برقرار رکھنے کا اعلان. میڈیا رپورٹس کے مطابق مارگیج لینے والوں نے فیصلے پر سکھ کا سانس لیا. دسمبر 2021 کے بعد سے شرح سود میں مسلسل 14 مرتبہ اضافہ کیا جا چکا ہے. شرح سود میں مسلسل اضافے کا مقصد مہنگائی کی شرح کو 2% پر لانا تھا. بھارتی آئین کی انگریزی کاپی سے سوشلسٹ اور سیکولر کے الفاظ غائب. بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے اسے آئین پر حملہ قرار دے دیا. کانگریس لیڈر ادھیر رنجن نے کہا کہ آئین کی کاپی میں سوشلسٹ اور سیکولر کے الفاظ نہ ہونا تشویشناک ہے. بی جے پی کی نیت مشکوک لگتی ہے. آئین کی یہ کاپی پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح پر ارکان کو دی گئی. وزیر قانون نے کہا کہ ان کاپیوں میں آئین کی تمہید کا اصل ورژن دیا گیا ہے. آئین جب وجود میں آیا تب اس میں سوشلسٹ اور سیکولر کے الفاظ نہیں تھے. یہ الفاظ 1976 میں آئین کی 42ویں ترمیم میں شامل کیے
किए गए थे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अंशा का वलीमा आज इस्लामाबाद में होगा। तकरीब में फैमिली और दोस्त और टीम के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी खातून को पेमा नाइला कियानी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। नेपाल में 8000 मीटर से बुलंद मनासलों की चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी को पेमा सरबाज अली ने मनासलों का रियल समिट सर कर लिया। उन्होंने ये कारनामा मसनूई ऑक्सीजन के बगैर अंजाम दिया। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में ड्रामे इंशा का इंतजार ने देखने वालों से खूब दाद वसूल की। फेस्टिवल में आज बच्चों के ड्रामे साजिश की वजह से खेल मुलतवी के 2 शोज होंगे। श्रीलंकन ग्रुप की जानिब से ड्रामा कैन बी एनीवन्स स्टोरी पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के ताउन से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।